I'm live. Good evening and welcome everyone to this session on Indian polity for fundamental rights. So let's get started with the class. There was a delay. I'm so sorry for being late. Actually कुछ technical glitches की वजह से ये हो रहा है. 1-2 दिन लगेंगे इसको थोड़ा stabilize होने में. Now fundamental rights. Yesterday we started the discussion on fundamental rights जिसमें हमने Article 12 से start किया. तो Article 12 says Article 12 talks about the definition of state, right? Definition of state क्यों important है? Because this is going to be applicable on, the part 3 is applicable. Part 3 is applicable on fundamental. Part 3, the fundamental rights are applicable on those organizations, those institutions which are defined under Article 12 as the state. Fundamental rights क्या है? These fundamental rights are fundamental for human survival, not mere animalistic survival, but humanistic survival. So the survival, इंसान वाली survival के लिए ये fundamental rights जरूरी हैं, जानवर वाली survival के लिए जरूरी नहीं है. That is why they need to have a special force of law. What is the special force of law that these fundamental rights have? The special force of law that these fundamental rights have is in the form of justiciability. Is in the form of justiciability. Justiciability का मतलब that they are justiciable. You can go to court directly. You can go to Supreme Court or High Court in order to get your rights implemented. Right? अपने fundamental rights को implement करवाने के लिए आप directly Supreme Court या High Court directly जा सकते हो. Special force in a constitutional democracy is special force in a constitutional democracy is the force of judiciary, right? तो directly आप fundamental rights के violation अगर होती है तो आप Supreme Court या High Court directly जा सकते हैं. तो this is the special force that these fundamental rights have. तो ये simple सा meaning है इसका. What are human rights? Human rights are a set of basic rights and freedoms that belong to every person irrespective of that person being a citizen of India or not. चाहे हम इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स हमें अवेलेबल हैं ही. यस, बोर्ड इज अ लिटिल टिल्टेड टुडे. ये सब चीज़ें एक्चुअली सेटअप थोड़ा सा हिल गया था. जस्ट बेयर विद मी. सो I think we can manage for today. It's just a minor tilt. It's a very minute difference. तो I think आज के लिए मैनेज हो जाएगा. अगर इसे छेड़खानी करेंगे तो थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाएगी. इसको थोड़ा इस तरफ कर देना, थोड़ा सा. इस तरफ, सॉरी, इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ और बस थोड़ा सा, बस. Now it will be fine. Okay. So human rights are a set of basic rights and freedoms that belong to every person. So what is the difference between human rights and fundamental rights? This is the difference, right? So they apply regardless of where you are from, what you believe or how you choose to live your life. So they can never be taken away. Human rights can never be taken away from you. They are ingrained in you. They are embedded in you by the virtue of the fact that we were born as human beings. तो ये right उसमें हमें enshrined हैं.
हम पैदा हुए हैं इंसान तो ये राइट्स हमें मिले हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि सभी ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के वे में रिकॉग्नाइज किया जाए. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल दीज फंडामेंटल राइट्स टू बी ऑल दीज ह्यूमन राइट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट्स. Yesterday I had explained that कि ह्यूमन राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचर ने हमें इंसान बनाया, इसीलिए नेचुरल जस्टिस वाली जो बातें हम करते हैं वो ह्यूमन राइट्स से ही डिराइव्ड हैं. ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं? नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड. किसी को भी सजा नहीं सुनाई जा सकती बिना उसको सुने. अगर हमने किसी को सुना ही नहीं तो उसको सजा नहीं सुनाई जा सकती. नोबडी शुड बी द जज इन हिज ओन केस. ये एक और नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है. तो ये ह्यूमन राइट्स से ही डिराइव्ड हैं. कुछ ह्यूमन राइट्स को हमने अपने लीगल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर लिया एज लीगल राइट्स, कुछ को हमने थोड़ा और स्टेचर दे दिया एज फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. दीज बेसिक राइट्स आर बेस्ड ऑन वैल्यूज लाइक डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस. These basic rights are based on values like dignity, insaniyat, fairness. What is fairness? If I tell you that you can die without with your tummy being empty, but you would not want to die with a sense of injustice. Fairness मतलब the perception की system हमारी तरफ fair है. UPSC का selection criteria should be fair. Both rich and poor should be able to compete and get selected, right? ऐसा नहीं है कि जो टॉल हैं या जो अंग्रेजों जैसे दिखते हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे, राइट? ये जरूरी नहीं है. तो ये सिस्टम, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड इंडिपेंडेंस, ये सब जो है फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स से ही इंस्पायर्ड हैं. कुछ वैल्यूज जो हैं वो हमने फंडामेंटल राइट्स में रिकॉग्नाइज कर ली, कुछ अभी हमने नहीं करी. क्लियर? फंडामेंटल राइट्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. स्पेशल फोर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. अब स्पेशल फोर्स का मतलब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में स्पेशल फोर्स का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा गया है, और पार्ट 3 वो पार्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं, राइट? नाउ बाय डेफिनेशन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज अ लीगल राइट. दिस इज ऑल्सो वी सॉ yesterday. Let's not waste time on this. Difference between fundamental right, constitutional right and legal right. Is this clear to everyone? Please say yes. क्लास स्टक नहीं हुई, एक भी बार नहीं हुई. देयर इज नो ड्रॉपिंग ऑफ फ्रेम्स एट माई एंड. क्लियर है? ओके. Fundamental rights in India act as the limitation not only upon the powers of the government but also on the powers of legislature. You cannot, Parliament of the day is a transitionary body. It has been elected for 5 years. Validity of the parliament is for 5 years. Lok Sabha will get reconstituted after 5 years. Just because one political party, BJP or Congress, has got a majority for 5 long years does not mean that they can trample upon the constitution, which is a permanent book which is going to last for maybe thousands of years. So no matter howsoever super majority, if a political party gets 400 seats out of 545, then also it does not have the power to dilute constitution. Then also it cannot dilute the constitution. ठीक है? Basic structure of constitution, कुछ basic features of constitution को
परमानेंसी का फीचर दिया गया है, परमानेंट रखा जाएगा, उनको तो आप डाइल्यूट कर ही नहीं सकते। स्पेशल फोर्स जुडिशरी के थ्रू है, ठीक है, थियोरेटिकल वे में मत पढ़ो, जुडिशरी के थ्रू है। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन रिव्यू करता है, कौन ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंटैक्ट रहेगी? किसने दिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशरी ने दिया। तो जो स्पेशल फोर्स है वो जुडिशरी है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? ओके, so this is there. Now special force in a constitutional democracy is constitution protected through judicial review. So ultimately it is judiciary getting the force from constitution itself. Judiciary को जो बल मिल रहा है, जो फोर्स मिल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जब कोई चीज रिटन में होती है, लिखित रूप में होती है, तो उसका मतलब यह है कि वो परमानेंट है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब तो ये हो गया कि ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और वहां पे जो लॉ पास करी जाती है वही सुप्रीम कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, जबकि ब्रिटेन में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ठीक है, पार्लियामेंट इज नॉट द सुप्रीम बॉडी। हाउ कैन वी से दैट? इज इट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Is it written in the Constitution of India that Parliament is not the supreme legal body? क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है? नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। But the democracies where the systems where there is a written constitution, the systems where there is a written constitution, it is implicit in those systems. It is understood that there is constitutional supremacy. When we say that what doctrine of constitutional supremacy or doctrine of parliamentary supremacy, what are we basically talking about? हम क्या बात कर रहे हैं जब हम ये कहते हैं? इसका मतलब ये है कि क्या हमारे सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा चलेगी या पार्लियामेंट की ज्यादा चलेगी? क्या तत्काल समय की, क्या एक प्रेजेंट टाइम की पार्लियामेंट जस्ट बिकॉज उसके पास में मेजॉरिटी है, लोकसभा में बीजेपी के पास में मेजॉरिटी है या कल को कांग्रेस के पास में मेजॉरिटी है, तो क्या वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं? वेदर दी डॉक्ट्रिन ऑफ, जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम बेसिकली ये पूछ रहे हैं, वेदर दी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हम ये पूछने की बात कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में ये है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी में ये है, this is the constitutional provision स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है यहां पे। जस्ट 1 मिनट। तो कुछ ऐसे मान लेते हैं, दिस इज स्टेप 2, ओके। यहां पे लॉ पास्ड बाय समझ में आया? तो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी में ये होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में क्या होगा? इसका उल्टा।
समझ में आया? लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। क्योंकि पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम लीगल बॉडी इन दिस सिस्टम, ठीक है, सुप्रीम लीगल बॉडी। पार्लियामेंट कैन चेंज द लॉ एज पर इट्स विम्स एंड फैंसीज। पार्लियामेंट का जब मन करेगा पार्लियामेंट लॉ को चेंज कर सकती है, राइट? It depends upon other countries. Shubhangi, is it clear, Shubhangi? Now, Baki, sorry sir, network issue. Anushri, okay. समझ में आया? Just try to memorize this or appreciate this. Take your time, maybe 1 minute or 2 minutes. Clear to everyone? Anybody, any doubt in this? Okay. Direct democracy will have parliamentary supremacy. Yes. Okay. तो डॉक्ट्रिन ऑफ कौन सी चीज सुप्रीम है? यहाँ पे एक बुक है जो कि एजेस के लिए लिखी गई है, सालों के लिए, सदियों के लिए लिखी गई है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है। यहाँ पे इस सिस्टम में ये सुप्रीम है कि जब कोई पार्लियामेंट द्वारा लॉ पास किया जाएगा उसको जुडिशियल प्रिज्म के थ्रू नापा तोला जाएगा, ठीक है? उस लॉ को असेस किया जाएगा ऑन द मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मिरर है, ठीक है, मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने उस दिन समझा। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट। व्हेन वी से दैट इन इंडिया Constitution is the supreme legal document, we mean that all other laws are subservient. ये subservient हो गया ना, ये they are serving the purpose of Constitution. They have all of these laws have to conform to the Constitution. Clear? यहां पे क्या है? यहां पे 5 साल के लिए ये जो हमारा दूसरा सिस्टम है, दिस वन 5 ईयरली गवर्नमेंट जो है, जो ट्रांजिशनरी गवर्नमेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसको पावर है कि आज की कॉन्टेम्परेरी रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन में ड्रास्टिक चेंजेस ला सके। Every law has to reflect positively on the mirror of the Constitution. If an arrow of a law reflects badly on the constitutional provisions, then that law will be declared to be invalid by the judiciary. समझ में आया? ये चीज हमने कवर कर रखी है, समझ में आनी चाहिए ये। It's just a rehashed version, or in other words kind of a thing we are covering this. यहां पे ये समझा जाता है कि कंट्री इज मेच्योर इनफ। देखो अब मैं सिंपल सी चीजों में समझा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में परमानेंट कब तक है? आने वाले टाइम में आप मेरी बात को याद करोगे, 10, 20, 30 साल के बाद हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन तब तक परमानेंट है जब तक हम लोग, द सिविक सेंस इज नॉट फॉलिंग अपॉन अस। द डे द कंट्री विल बिकम मेच्योर, people will understand as to what this political class is going to do. Parliamentary supremacy मतलब जो political executive है, जो हाल फिलहाल की सरकार है, उसको बहुत ज्यादा पावर्स हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इसलिए रखा, उन्हें पता था कि हम लोग अभी समझदार, पीपल ऑफ इंडिया विल टेक सम इयर्स टू अंडरस्टैंड द वे द डेमोक्रेसी फंक्शंस। हमारे यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा नेता आता है तो उसकी वर्शिपिंग करने लगते हैं, ठीक है, हर हर मोदी होने लगता है घर घर में, इसीलिए इंदिरा गांधी को दुर्गा बुलाया जाने लगता है, राइट? तो प्याज के दाम बढ़ते हैं तो प्याज को अटल जी का नाम देने लगते हैं हम लोग। हम ये नहीं समझते कि डेमोक्रेटिक सिस्टम काम कैसे करता है। हम लोग
इस डिजीज से अफेक्टेड हैं, मेरा क्या मुझे क्या, है ना। इसलिए लोगों को कुछ नहीं पड़ी। इनकम टैक्स या जब बजट पास होता है तो लोग ये देखते हैं कि मेरी इनकम में से कितना टैक्स जाएगा। बजट अच्छा है या बुरा है कंट्री के वे से नहीं सोचा जाता, बजट अच्छा है या बुरा है अपने हितों के वे से, सेल्फ इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। इसीलिए कोई भी आया नेता ये ना कहे कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा ताकि उसको फायदा हो और जनता को बुर्बक ना बना सके, है ना। कुछ फीचर्स, कोई नेता ये नहीं कहे कि देखो अगर आप अपना वोट देंगे आपका वोट मेरी जेब में आ जाएगा, ऐसा कहते हैं ना नेता। तो कोई नेता ये ना कहे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते हैं, वो तो यही कहेगा क्योंकि लोकप्रिय है वो नेता। दैट पर्टिकुलर पॉलिटिशियन इज वेरी वेरी इज बिलवेड टू द पीपल, सो ही माइट से कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते हैं। हमारे यहाँ पे हीरो वर्शिपिंग का कल्चर है। हीरो वर्शिपिंग इज अ शोरेस्ट रोड टू द डिजास्टर, एज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैड सेड। तो इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सोच समझ के जो कॉन्स्टिट्यूशन रखा, अवसरवादी राजनीति से बचने के लिए आज की पार्लियामेंट्स उसे चेंज ना कर सकें, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक परमानेंट काइंड ऑफ बुक लिख डाली इनडिलायबल इंक में। अब समझ में आया, ताकि आने वाले आजकल के नेता जो हैं अपने अवसरवादी राजनीति के चलते, जैसे KCR ने नई स्टेट बनवा डाली डिमांड करके। अब कल को कोई नेता ये कहेगा तमिलनाडु से कि तमिलनाडु एक अलग कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट के लोग ये कहेंगे, उनको उनके लीडर्स जो हैं उनकी हीरो पूजा होती है कि ये देखो हमारे हितों की बात करते हैं, ट्राइबल्स को अलग स्टेट दिलवा के रहेंगे। तो इसीलिए कल को अगर इंडिया में लिखा जाएगा, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होगी तो कोई भी अलग अलग कंट्रियां बनाने की बात करेगा, पता नहीं हमारी कंट्री जो है बैल्कनाइज हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी। इसीलिए हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, they gave more importance to the constitutional provisions, even though Parliament of India has got a right to amend the constitution, but judiciary has added an other element to it, that Parliament can amend the constitution but it cannot touch those provisions of the constitution which judiciary has called as basic structure of constitution। कुछ चीजें बहुत ही बेसिक हैं, ठीक है। जैसे आप एक फैमिली का हिस्सा हो, ठीक है, यू कैन मैरी द पर्सन ऑफ योर चॉइस बट यू कैन नॉट गो एंड मैरी एनी रोड साइड बॉय और गर्ल। होता है ना कि एक फैमिली का एक संस्कार है, उससे नीचे नहीं गिरोगे, राइट। समझ आ रही है। यू कैन रिजॉर्ट टू ड्रिंक्स एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है कि सड़क पे धुत पड़े हो। समझ में आ रही है बात। सिमिलरली आप कुछ भी करोगे लेकिन फैमिली, पेरेंट्स की इज्जत करोगे, ये सब चीजें लिखी हैं। तो वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी ने ये कहा कि ठीक है आप अमेंड करो। अमेंड करने के लिए एक थ्रेशोल्ड रख दिया कि जब आप ऑर्डिनरी लॉ पास करोगे, जब आप कोई ऑर्डिनरी लॉ पास करोगे तो आप क्या कर सकते हो, जब आप ऑर्डिनरी लॉ पास करोगे तो 50% ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनकी मर्जी से कर सकते हो, ठीक है। जब आप कोई ऑर्डिनरी लॉ पास कर रहे हो तो आप 50% ऑफ दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनकी मर्जी से कर सकते हो। 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब पता है क्या है कि किसी एक दिन 545 मेंबर्स में से 230 ही प्रेजेंट हैं। 230 का 50% अगर फेवर में वोट करता है, 230 का 50% मेंबर्स 116, 50 + 1, तो वो लॉ पास हो जाएगा। ये तो हो गया ऑर्डिनरी लॉ। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये लिख दिया कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, बुक में चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज करना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को चेंज करना है तो आपको 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का समर्थन चाहिए होगा। अगर किसी दिन 230 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो उस केस में 230 का 2/3 प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 50% ऑफ 545। अब ये डिफिकल्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये कह सकते हैं, डायरेक्टली तो नहीं दे रखा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हमारे यहाँ पे होगी, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसको जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक टफ प्रोसीजर दिया गया है।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इज टफ, उस बात से हम ये इम्प्लाइड चीज समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस और प्रोसीजर इज टफ, ठीक है, उस चीज से हम ये समझते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनडायरेक्टली जो एक प्रोविजन दे रखा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का दे रखा है, इम्प्लिसिटली दे रखा है, एक्सप्लिसिटली रिटन में ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दे रखा, प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, क्लियर? On what basis can we say that there is constitutional supremacy? On these two grounds. क्लियर है सबको अभी तक? तो ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि जब भी कोई लॉ पास किया जाएगा, जब भी कोई लॉ पास किया जाएगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टिकोण से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिज्म से देखा जाएगा। जैसे हमने प्रियम्बुलर प्रिज्म देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिज्म से उसको पास किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि वो लॉ क्या, वेदर दैट लॉ मिरर्स द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। मिरर ऐसे बनाते थे ना फिजिक्स की लैब में, राइट? इफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ आर एबल टू बी कंप्लायंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मिरर और not, ठीक है? If that law happens to fall on the floor, touches the lower, touches the ebb, तो इस केस में इसको रिपील, इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी जुडिशरी। It will be declared invalid in जुडिशियल रिव्यू। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ये बात की कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है और कैसे प्रूव होती है, एक और थर्ड पॉइंट इज रिटन। कोई चीज रिटन में क्यों लिख के जाओगे? जैसे जब कोई अभी दिस को पार्सनल प्रॉपर्टी का जो अभी लॉ आया है, कोई फादर अगर अपनी डॉटर के नाम पे रिटन में लिख के जा रहा है तो यानी कि वो एलिमेंट, वो फादर जो है वो एलिमेंट ऑफ इनडिलायबिलिटी, एलिमेंट ऑफ परमानेंट वसीयत लिख के जा रहे हैं। अगर कोई ऑरली बोलता कि हाँ बेटा ठीक है तुम बहुत लायक हो, तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी कर देंगे, यानी कि अभी उन्होंने विचार नहीं बनाया, ठीक है, अभी उन्होंने फुल्ली डिसाइड नहीं किया। द वेरी फैक्ट दैट वी हैव गॉट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात ये समझाती है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को परमानेंट ना मानना होता, परमानेंसी की फीचर उसमें नहीं होती, तो वो उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के वे में क्यों प्लान करते? वो भी ब्रिटेन की तरह उसे ओपन छोड़ देते कि ठीक है लूज एंडेड है, जो लॉ पास कर रहे हो वही कॉन्स्टिट्यूशन है, जब लॉ चेंज हो जाएगा तो ये समझ लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में जुडिशरी की पावर वीक होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी में जुडिशरी की पावर जो है स्ट्रांग होती है, जुडिशरी के पास में ज्यादा पावर्स होती हैं। इसी वजह से जुडिशरी जो है आज इतनी पावरफुल है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कहीं नहीं दे रखा कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक पार्ट हैं, ये कहीं नहीं दे रखा, लेकिन जुडिशरी ने इन्वेंट किया। इट इज अ जुडिशियल इन्वेंशन, इट इज अ केस ऑफ ओवर रीच ऑल्सो। जुडिशरी को क्या पता, कोई कब्रों से थोड़ी मिल के आई थी वहां पे, कोई ऐसा तो है नहीं कि जजेस जो है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ऐसा तो है नहीं कि जजेस जो है जाके जवाहरलाल नेहरू की कब्र से जाके सुन के आए थे कि बताओ क्या परमानेंट है कि नहीं, है ना? तो ये अपनी तरफ से कैसे कह दिया जजेस ने? हो सकता है जजेस को जो नहीं लगता वो भी परमानेंट हो, लेकिन ये पावर इसीलिए है क्योंकि जिन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होती है वहां के सुप्रीम कोर्ट्स, वहां की जुडिशरी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है? हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो भी परमानेंट ही है। क्लियर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है वो भी परमानेंट फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है, बट नॉट एवरी फंडामेंटल राइट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर है अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी वाला पार्ट? आगे चलें।
तो there are three reasons on the basis of which we can say that on the basis of which we can say that on the basis of which we can say that this is there. फोन आएगा तो उठा लेना. On the basis of which we can say that our constitution is that we have constitutional supremacy in India. अब आगे चलते हैं फटाफट फंडामेंटल राइट्स की ओर. तो इसी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया. आर्टिकल 12 ये डिफाइन करता है कि कोई भी ऑर्गन जिसे स्टेट की डेफिनेशन में रखा गया है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12 इन पार्ट 3. तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन अंडर आर्टिकल 12 is for the exclusive purpose of implementability of fundamental rights. जो organ of state fundamental rights को violate करेगा उसे definition of state लगा के पहले जांचा जाएगा कि क्या वो fundamental rights के लिए दी गई आर्टिकल 12 के अंडर जो definition है उसके अंडर आता भी है कि नहीं. इसमें सिंपल सा ये लिखा है in this part यानी कि part 3 unless the context otherwise requires. जब तक context otherwise नहीं कहता, the state includes government and parliament of India, government and legislature of each of the states and all the local or other authorities. When we say that state cannot take away my right to equality, the state shall not prohibit me on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. What are we actually trying to say? We are actually trying to say that the organs of state as defined under article 12 shall not do that. Judiciary per se does not come under the definition of state. Okay? Judiciary does not come. अब अगर इसमें हम ये देखें कि लोकल अथॉरिटी, दैट मीन्स इवन अ म्यूनिसिपैलिटी इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. Even the district collector's office is under definition of state. Every department of ministry, government of India, government of state, governor's office, everybody who is a government representative is under state. Parliament के secretariat, Lok Sabha, Rajya Sabha come under the definition of state. State shall not take away my fundamental rights. इसलिए हमने सबसे पहले स्टेट को डिफाइन कर दिया. स्टेट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, इट हैज बीन डिफाइंड. क्लियर? अब इस पे कंट्रोवर्सी भी होगी. ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. If a public sector bank is under the control of government of India, is it a public sector entity? Is it a public sector entity? Please answer. Is it an organ of state? Yes, it is an organ of state. ठीक है? That organ is an organ of, very much an organ of the state. अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि किसी भी स्टेट के द्वारा किसी भी पर्सन को मैनुअल स्कैवेंजर यानी कि गटर्स में नहीं भेजा जाना चाहिए. ठीक है? मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए काम नहीं करवाया जा सकता. किसी को बिना ऑक्सीजन साइलेंडर्स और इक्विपमेंट के बिना ये काम नहीं करवाया जा सकता. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी जो स्टेट के दायरे में आती है, सभी म्यूनिसिपैलिटीज को स्टेट की डेफिनेशन में रखा गया है. ठीक है? Reflective side of the mirror is wrong. Very nice. I wish we were in the I would have been a physics teacher. Rather I would have been an Einstein to reflective side और ये सब अच्छे से draw करने के लिए, right? This happens when lawyers they attend the class and naturally general studies polity teacher is bound to be criticized, है ना? Fault finding, nitpicking होगा. Mirror थोड़ा सीधा बना लेना. And who knows it better than you guys? What is the shape and tilt and everything of the mirror? Very nice. You guys keep on preening yourself in front of the mirror the whole day. You are experts in that. Now in the process Supreme Court laid down. मैं अपना mirror तुम्हारी classes में ही देखता हूँ यहाँ पे. ठीक है? तो हो जाती है गलतियाँ. In the process the Supreme Court, अब यहाँ पे देखो,
government and the parliament of India and government and legislature of each state, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नर्स ऑफिस, सब कोई स्टेट के दायरे में आ जाता है, राइट? सो दिस इज देयर, it's getting stuck. No, not even a single frame has dropped so far. Very nice. Isha, you were there in the other classes, है ना? Alright. अगर किसी गवर्नमेंट का कोई जॉइंट, अभी एक एक करके मैं सारी केसेस समझाऊंगा, ठीक है, क्या क्या केसेस इसमें आते हैं. तो केस लॉ, बीसीसीआई, पहले क्वेश्चन ये आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. Board of Control for Cricket in India, just because it uses the name, why do we consider only 545? बाद में, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है. मैंने पहले ये समझा चुका हूँ प्रहलाद, आपने शायद बैकलॉग वाली क्लासेस अच्छे से नहीं कवर करी, एंड आई कैन वाउच फॉर दैट कि आपने नहीं कवर करी, अच्छे से नहीं करी. एक बार सुनी होगी 1.75 या 2x पे. बीसीसीआई क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आधारा है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, और डज इट रिप्रेजेंट इंडियन स्टेट? merely if a body uses the name India, does it come under the definition of state? ये बड़ा क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट laid down a criteria saying that BCCI is not financially, functionally or administratively dominated by the government, nor is it under the control of the government. The court therefore said that it does not come under the definition of the state. इस केस में हुआ क्या था? जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जी टेलीफिल्म्स ने ये केस किया कि हमें बीसीसीआई ने टेलीकास्ट राइट्स नहीं दिए, इक्वालिटी को ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहने लगी थी, अपना पल्ला छुड़ाने में लगी थी कि बीसीसीआई से हमारा कुछ लेना देना नहीं है. बीसीसीआई ने करप्ट वे में या नॉट सो ऑनेस्ट वे में टेलीकास्टिंग राइट्स सेट मैक्स या किसी और चैनल को दे दिए थे. तो जी टेलीफिल्म्स ने ये कहा बीसीसीआई शुड बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. समझ में आया? बहुत टैंगल्स थे इस केस में. फिर जी टेलीफिल्म्स खुद ही कहने लगा कि जी टेलीफिल्म्स को राइट दे दिए गए. अगली बार कुछ ऐसा हुआ, जी टेलीफिल्म्स को यूनियन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आपको जो राइट्स मिले हैं आप उस पर हमें टैक्स दो, ठीक है. तो जी टेलीफिल्म्स ने ये कहा कि बीसीसीआई आपकी बॉडी है और इससे जो आपको टैक्स वैक्स मिल रहा है. तो ये सारी चीजें हुई. ले दे के क्वेश्चन ये था कि क्या BCCI comes under the definition of state for the purpose of regulation by the state or not, for application of fundamental rights of equality or right to do business, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए. अब ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही कि बीसीसीआई ना तो फाइनेंशियली, ना तो फंक्शनली और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, इन द प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन अ क्राइटेरिया, फाइनेंशियल, फंक्शनल कंट्रोल हो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, ठीक है. तीनों में से अगर कोई भी कंट्रोल नहीं है तो उस बॉडी को हम ये नहीं कह सकते कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंडर है. क्लियर? अगर तीनों में से कोई भी कंट्रोल नहीं है तो उसको कैसे कहोगे? क्लियर? ये चीज हुई. अब आगे चलते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जैसे तिरुमला टेम्पल कमेटी है या फिर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ठीक है, इनके खिलाफ भी केसेस आते रहते छोटे मोटे किसी हाई कोर्ट में या कुछ, या फिर अमरनाथ यात्रा का जो प्रबंधन कमेटी है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वहां पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, बट दैट इज जस्ट इन द कैपेसिटी ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है. कुछ भी जो टेम्पल मैनेजमेंट या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट ट्रस्ट होते हैं उसमें कुछ आईएएस ऑफिसर्स को ट्रस्टी बनाया जाता है. दैट डज नॉट मीन दैट पर्टिकुलर टेम्पल और रिलीजियस श्राइन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है. फंक्शनल कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ साथ फंक्शनल कंट्रोल, मैनेजमेंट के मेंबर्स को अपॉइंट करना, ये सब पावर्स अगर गवर्नमेंट के हाथ में रहती हैं तो उस बॉडी को क्या कहा जाएगा? उस बॉडी को कहा जाएगा कि वो बॉडी सरकार के, स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती है. फिर आई बात फाइनेंशियल असिस्टेंस, सब्सटैंशियल सोर्स ऑफ फंड्स. अगर मेरा
ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है 100 करोड़, इस 100 करोड़ का 90% अगर गवर्नमेंट देती है तो इसका ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस मुझे दे रही है. इफ आई रन अ प्राइवेट स्कूल टुमारो and government is giving the salary for just 30% of the teachers, that would not mean that government is the that state school is a state school and you would have to apply all the government norms on that school. समझ में आया? मेयरली रिसीव, अगर मेरे स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होता है और कोई मंत्री आए, उन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए, अब वो 5 लाख अगर मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का 90% नहीं है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो स्कूल सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार चल रहा है. इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ स्टेट रन स्कूल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, अगर मेरा IAS का कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स, दिल्ली गवर्नमेंट के जो दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग जो SC ST स्टूडेंट्स हैं, मेरिट लिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाता है और उससे मेरे IAS के इंस्टीट्यूट के 90% इनकम आती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट, तो अगर मैं कोई फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता हूं तो मेरे को स्टेट का आधार माना जाएगा, यानी कि मेरे ऊपर भी वो पार्ट 3 में दिए गए सारे फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होंगे. अगर मैं एक NGO चलाता हूं, लिखते जाना साथ साथ या बाद में लिख लेना, इफ आई एम रनिंग एन NGO, मैं एक केस समझाता हूं, सारा कुछ समझ में आ जाएगा. छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि एक NGO को हायर किया गया, किसके लिए? ट्यूबेक्टॉमी के लिए, ठीक है. ट्यूबेक्टॉमी जो सर्जरी करी जाती है विमेन पे, राइट, उनके लिए हायर किया गया और उस NGO को 900 रुपीज पर ऑपरेशन दिए जाने थे. कितने? 900 रुपीज. अब 900 रुपीज के चलते NGO क्या करेगा? डॉक्टर्स का NGO था, पैसे कमाने के लिए NGO खोल रखा था. उन डॉक्टर्स ने क्या किया, एक संडे के दिन उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल के जो बेंचेस होते हैं वहां पे महिलाओं को लिटाया और बिना स्टेरिलाइज किए, बिना हाइजीन के वो ऑपरेशंस करने स्टार्ट कर दिए. आउट ऑफ द 50 women who were subjected to this kind of an operation, उनमें से 50 women में से कितनी women? 34 women की डेथ हो गई. गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने ये कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है. किसकी गलती है? NGO की गलती है. समझ में आया? NGO इज ए प्राइवेट एंटिटी, हमारा उससे सिर्फ इतना लेना देना था कि वी वर पेइंग ₹900 फॉर एवरी सच ऑपरेशन. गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को ये कहा गया कि इफ दैट NGO वुड हैव operated individually, these women would not have gone to that NGO even if that NGO was doing the operation for free. The women went to this NGO only because there was an element of trust, the propagation that the government had done, जो announce किया गया था, उस वजह से वो महिलाएं वहां पे ऑपरेशन करवाने गई. अब NGO को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा या गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने बोला कि हम कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे, NGO से कॉम्पेंसेशन वसूला जाए. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह कहा कि कॉम्पेंसेशन इन द फर्स्ट प्लेस वुड हैव टू बी गिवन बाय यू टू द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ दीज वुमेन. समझ में आया? ठीक है. और बाद में द गवर्नमेंट कैन सीक रिकोर्स ऑफ कॉम्पेंसेशन. गवर्नमेंट बाद में ये रिकवरी कर सकती है NGO से. दूसरी बात ये आई कि क्या वो NGO का 90% खर्चा सरकार चला रही थी? 90% ऑफ द ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वेदर इट वॉज बीइंग मेट आउट ऑफ द गवर्नमेंट कॉफर्स और नॉट. क्लियर? समझ में आया? ये एक पैरामीटर रखा गया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का 90% खर्चा सरकार देती है, या सरकार स्टेट गवर्नमेंट दे या सेंट्रल गवर्नमेंट दे, या दोनों मिलके 60-30, 45-45 या 100% ही खर्चा सरकार दे रही हो, अगर आउटसोर्स किया गया हो काम, तो इसका मतलब ये नहीं यू कैन रिलीव योरसेल्फ ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग विद द फंडामेंटल राइट्स मेयरली बाय हायरिंग थर्ड पार्टीज. एक और केस,
सल्वा जुदुम कितनों ने सुना है? सल्वा जुदुम सुना है? सुना है कि नहीं? फटाफट बताओ। बोलो फटाफट। अब सल्वा जुदुम में क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार जब 2009 में 2009-10 में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राइट? तो इन्होंने क्या किया, नक्सलाइट्स के अगेंस्ट, कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स ने नक्सलाइट्स के अगेंस्ट ट्राइबल्स को एम्पावर करने के लिए हायर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ट्राइबल्स को हायर करना शुरू कर दिया, उनको गन्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दे दिए, सिविलियंस को, और गवर्नमेंट इनको इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वाज गिविंग द मनी। तो गवर्नमेंट यूज्ड टू से कि गवर्नमेंट, जब ये केस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि सल्वा जुदुम केस जो है वो हमारे अगेंस्ट नहीं, इन बॉडी ऑफ ट्राइबल्स के अगेंस्ट चलाना है तो चलाओ, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन इन ट्राइबल, गलिबल ट्राइबल लोगों को 500-500, 700-700 रुपए देके हथियार थमाए गए, और जब बिना ट्रेनिंग के ये लोग नक्सल्स जो गोरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेंड हैं उनके खिलाफ लड़ते थे तो शहीद होके वापस आ जाते थे, शहीद होके इनकी डेड बॉडीज वापस गांव में आ जाती थी। अब ये फिनोमिना जब काफ़ी बड़े स्केल पे होने लगा तो ये नेचुरली मीडिया और जो जेन्युइनली इन्वॉल्व एनजीओज थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इस फिनोमिना के अगेंस्ट केस किया। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है उसकी बिना पे अगर ये काम हो रहे हैं तो स्टेट कैन नॉट टेक द शेल्टर बिहाइंड द एनजीओज who are committing this mistake or this error, right? फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंट होना या फंडामेंटल राइट्स के तहत, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के तहत आपने ये काम किया है। क्लियर? तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट को अप्लाई करते हुए गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया सल्वा जुदुम के इस एक्सरसाइज के लिए। तो ये सारे तरह के फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ये इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, सिर्फ इतना ही है। क्लियर? देन एक दो एग्जाम्पल्स और दे रहा हूं। एनटीपीसी वॉज इन पार्टनरशिप विद एंटी इंसर्जेंसी, yes, but you cannot hire, you cannot render your own men vulnerable, right? You cannot say कि फौजी नहीं मरेंगे, फौजी मरेंगे तो सरकार की बदनामी होगी, कांग्रेस गवर्नमेंट की नाम खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगी, इसलिए उन गलिबल लोगों को आगे क्यों किया जा रहा है। दूसरा, एनटीपीसी वॉज इन केस नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एनटीपीसी इन पार्टनरशिप विद वेदांता ग्रुप was doing the mining in झारखंड और छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट। कुछ स्टेट्स में इतना ज़्यादा माइनिंग वगैरह की वजह से जो डस्ट होता है, कोल डस्ट की वजह से पॉल्यूशन हुआ, वहाँ के वाटर के जो पॉन्ड्स हैं वो भी पॉल्यूटेड हो गए। तो जब कॉम्पेंसेशन देने के लिए कहा गया तो एनटीपीसी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है, एनटीपीसी से कहा गया कि आप डेफिनेशन ऑफ स्टेट आप पे एप्लीकेबल होगी। एनटीपीसी ने ये कहा कि वी आर इन पार्टनरशिप विद अ प्राइवेट कंपनी वेदांता ग्रुप, तो इट शुड नॉट बी मेड एप्लीकेबल ऑन अस। ये कहा गया कि पहले ये बताया जाए कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में कितनी है। इवन दो कंपनी, एनी कंपनी, माई कंपनी और एनी अदर कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। कोई भी कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है कानून की नज़रों में। तो क्या कंपनी पे स्टेट की डेफिनेशन में कंपनीज को लाया जाना चाहिए? हाँ, अगर कोई जॉइंट वेंचर है जिसमें कि दो कंपनीज पार्टनरशिप में है 51 और 49 की रेशो में, तब भी इन दो कंपनीज को जॉइंट एंटिटी ये देखा जाएगा कि अगर स्टेट रन कॉरपोरेशन है
तो भी गवर्नमेंट कैन नॉट हाइड फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मेयरली बाय क्रिएटिंग लीगल व्हील्स। वेल होता है कर्टेन, जैसे यहाँ पे ग्रीन कर्टेन लगा होता है ना, वो कर्टेन लगा के ऐसा नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी, सही आइडेंटिटी आप छुपा लोगे। फंडामेंटल राइट्स, आपको राइट टू वाटर वगैरह वहाँ पे ना इंश्योर करना पड़े, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिला के अपनी असली आइडेंटिटी जो कि स्टेट है उसको आप नहीं छुपा सकते। समझ में आया? I'll explain everything, don't worry, right? समझ में आया ये? आप you cannot hide behind any shelter, you cannot hide behind the law. Clear? कंपनीज एक्ट के तहत कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसकी आइडेंटिटी उसके डायरेक्टर्स, जैसे कि मैं हूं, अगर मैंने अपनी कंपनी के आगे लिख दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, लिमिटेड का मतलब होता है द लायबिलिटी ऑफ द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि विजय माल्या प्रॉपर्टी बेच खाएगा और कंपनी में घोटाला करेगा, या राजू जो थे सत्यम के पीछे, वो कुछ भी फ्रॉड करेंगे तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं करी जाएगी। इसलिए कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा जाता है ताकि जो भी पर्सन कंपनी के साथ में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं उनको ये पता करना चाहिए कि कंपनी की शेयर होल्डिंग लिमिट क्या है, ठीक है, कंपनी किस हद तक अपनी जिम्मेवारियों का निवारण करेगी, टू व्हाट एक्सटेंट इज द कंपनी गोइंग टू फुलफिल। अब लिमिटेड लायबिलिटी बनाने के लिए कंपनी स्ट्रक्चर लोग बनाते हैं फ्रॉड करने के लिए, बट क्या गवर्नमेंट अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ में एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना लेती है एनटीपीसी विद वेदांता, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसको फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉल्व कर दिया जाएगा? क्या इसका मतलब यह है कि उसको फंडामेंटल राइट्स की अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने से आजादी मिल जाएगी? नहीं। समझ में आया? तो ये जो लेड आउट प्रिंसिपल्स हैं ये वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जरिए निकल के सामने आते हैं, ठीक है। कंपनी को लोग चलाते हैं, बट अगर वो लोग कंपनी को सेबी के, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे तो उन लोगों के खिलाफ पर्सनल कैपेसिटी में कार्रवाई की जा सकती है। क्लियर? बीसीसीआई केस एंड अदर केसेस। अभी एक क्वेश्चन आपका जो आ रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एनी बॉडी, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, be it a deemed university, be it any other bank or anything। अब ICICI बैंक है, वो रेगुलेट तो गवर्नमेंट कर ही रही है, RBI is regulating the bank, UGC is regulating deemed universities or any other universities, merely because these organizations are being regulated, merely because I am a private entity being regulated by the government, the state, does not mean that I am a state myself, does not mean that I am a state too। समझ में आया? सुबह आई होप यू वुड अग्री विद मी। समझ में आया? सिर्फ रेगुलेशन का, अब जैसे तो कोई पॉल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट, जो पॉल्यूशन अंडर PUC सर्टिफिकेट देते हैं दिल्ली में, अब वो अगर फर्जी सर्टिफिकेट देने लग जाएं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्टेट ने उनको परमिशन दी है। PUC सर्टिफिकेट जो पेट्रोल पंप पे आप चेक करवाते हो, स्टेट ने अगर उन्हें परमिशन दी है पेट्रोल रिफ्यूलिंग स्टेशंस पे कि वो PUC सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर वो फर्जी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गिल्टी ठहराओगे। हाँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप गिल्टी एक्यूज ठहरा सकते हो। किस कैपेसिटी में? कि ये उनका लैप्स है। अगर कहीं पे आग लगती है, जैसे अभी आंध्र प्रदेश में जो ट्रेजेडी हुई, फायर ट्रेजेडी या कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, तो रेगुलेटर को आप लैप्सेस के लिए, गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार, उसको कंपनी को सरकार मान लोगे जहां पे आग लगी थी। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को ICAI ने सर्टिफिकेट दिया है और वो ICAI के सर्टिफिकेट की उल्लंघना करते हुए
करप्शन एडवाइजर बन जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ICAI का ये चार्टेड अकाउंटेंट को आप स्टेट मानोगे। समझ में आया एक बात? इज दिस क्लियर? Saket, is it clear now? ठीक है, एवरीबडी अग्रीज। देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटी या कोई भी एंटिटी है, जस्ट बिकॉज इट इज बीइंग रेगुलेटेड, अब CBSE अफिलिएटेड स्कूल्स हैं, अब वो डीम्ड स्कूल्स हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो वो प्राइवेट ही ना। अब जैसे चितकारा नाम का एक कॉलेज है पंजाब में, चितकारा कॉलेज इज मतलब इट इज अफिलिएटेड, इट हैज बीन given the deemed university status by UGC, but that will not make it a government entity. It will not bring it under the definition of the state. Clear hai? Where is this guy Saket? Saket, is it clear? अभी देखो मजे लेते हैं। ओके नहीं क्लियर है तो सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल है साकेत में, मेरे से मिलने आ जाना, किसी और से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कमिंग हेयर, I can very well understand your doubts when you ask them again and again. Statutory regulation of functioning of society is not an imprint of the state. Statutory regulation, cooperative societies, this point validates it, ठीक है? Statutory regulation of functioning of societies is not an imprint of the state under Article 12. The tests for determining as to when a corporation can be said to be an instrumentality. कुछ organizations को state instrument use करती है, जैसे सलवा जो तुमको यूज किया, ठीक है, सलवा जो तुमको यूज किया, या फिर किसी NGO को स्टेरिलाइजेशन या फिर कुछ ऐसी ड्राइव के लिए। अब मान लो कि जैसे इंदिरा गांधी ने, ध्यान देना, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंदिरा गांधी के टाइम पे संजय गांधी खुद ही लगे हुए थे नसबंदी करने मुस्लिमों की, था ऐसा, ठीक है, क्योंकि तब NGO प्राइवेट सेक्टर नहीं होता था। अब क्योंकि हम लिबरलाइज्ड हो गए हैं, वही काम ट्यूबेक्टोमी जैसे ऑपरेशंस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए करवाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई लैप्स होगा, अगर गवर्नमेंट ने उसे हायर कैपेसिटी में एज एन एसोसिएट हायर करा है, अगर गवर्नमेंट ने किसी हॉस्पिटल को एम्पैनल करा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर, अगर उस हॉस्पिटल से कोई लैप्स होता है या उस हॉस्पिटल में कोई किडनी स्कैम होता है, दैट डज नॉट मीन दैट गवर्नमेंट इज रिलीव्ड ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ paying the amount of compensation to the victim of such entities. However, if an entity is just being regulated by the government at an arm's length, and if that entity commits a fraud, government is nowhere in the picture. Government is just a regulator. Yes, you can sue the officials in their personal capacity or professional capacity. You can sue the government for being delinquent on its duty, ठीक है, जो भी ऑफिसर्स वहां पे हैं। इंस्ट्रूमेंटैलिटी अगर किसी को यूज किया जा रहा है तो आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी अगर सरकार किसी को यूज कर रही है तो, जैसा मैंने बताया कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन दोज एरियाज वेयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट देयर, तो एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट वाज इट वुड बी कंसिडर्ड। अब यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटीज केस, if the entire share capital of the corporation is held by the government, when the financial assistance of the state is so much as to meet almost entire expenditure of the corporation, it would afford it, we can logically conclude that corporation form, company form is being impregnated with the governmental character. मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं, देखो अच्छे से एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम थोड़ा ध्यान से समझना चीजों को। एक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का केस है जो कि मैंने पहले भी बताया है, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, बस बना लेते प्यारी सी फटाफट से। State transport corporations, as because of the very nature of this kind of a business, because it is a welfare driven activity by the governments.
अब इसके कुछ ड्राइवर हर साल शहीद होते हैं, मतलब रोड एक्सीडेंट्स, द वे दे ड्राइव दीज बसेस, ठीक है। इनके पीछे कुछ 75 विडोज थी, ठीक है, 75 विडोज, द ड्राइवर्स, द डिजीज ड्राइवर्स वाइव्स। अब एक डिपार्टमेंट जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन था, दैट वाज रनिंग इनटू लॉस. The per annum loss was around 67 crore rupees. I cannot name the state and all. Now, the chairperson, the managing director of this state transport corporation was an IAS officer. He was given the power under the act. For every such corporation there is an act of state legislature, ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट. आई विल नॉट नेम द स्टेट. तो IAS ऑफिसर ने ये बोला, he was empowered under the act to cut down on the wasteful expenditure whenever the corporation runs into loss. Being the managing director of a corporation which is an autonomous entity, corporations are given relative amount of autonomy. तो मैं गवर्नेंस का पार्ट है ये आज ही इसको बता दूंगा कि कॉर्पोरेशन क्या होता है. मैनेजिंग डायरेक्टर को ये आदेश थे, इस एक्ट के अंदर ये पावर थी कि मैनेजिंग डायरेक्टर यदि ये चाहें तो कॉर्पोरेशन के लॉस के होने की अवस्था में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कट कर सकते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या कहा कि 75 विडोज की पेंशन को रोक दो, पुट अ स्टॉप or hold the pension of these 75 widows because the corporation is running into loss. Now these widows, they filed a suit, they filed an ordinary case because they were not able to organize themselves. The case went to subordinate court. It was inconclusive. Then these women, they combined their energies, they contributed rupees 5,000, 10,000 rupees each, and they hired a good lawyer. Liar कभी कभी निकल जाता है, slip of tongue. Lawyers और liars में फ़र्क थोड़ा कम ही रह गया आजकल, ठीक है. और वॉवेल ओ पे, ए पे मैं थोड़ा अटक जाता हूँ, एल पे खासकर अटक जाता हूँ यहाँ पे. सो ऑर्डिनरी लॉ जब पास करी तो नहीं हुई, लेकिन इस लॉयर ने उनको ये कहा कि आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालिए. रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड व्हेन फंडामेंटल राइट्स आर इन क्वेश्चन. तो हाई कोर्ट में डायरेक्टली आप फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन पे रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. रिट पिटीशन फाइल हुआ तो हाई कोर्ट ने इसे एडमिट किया. हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपको ये IAS ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजमेंट को ये ऑर्डर्स दिए कि रिलीज द पेंशन ऑफ दीज विडोज. इनकॉन्क्लूसिव. द IAS ऑफिसर वाज नॉट रिलेंटिंग, ही डिड नॉट रिलीज. सेकेंड हियरिंग में ये कहा कि आपको ये देना पड़ेगा. तो इस ऑर्गेनाइजेशन के, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो अटॉर्नी जनरल या सब अटॉर्नी जनरल होते हैं, उन्होंने ये कहा, सरकारी वकील ने ये कहा कि सिंस कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस एंटिटी, इट डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. उस टाइम पे हाई कोर्ट ने ये कहा कि मेयरली बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ कॉर्पोरेशन, nonetheless it is an entity of the state. समझ में आया? It cannot be run purely on the business lines. You have to give these pensions to these widows, this amount of pensions. नहीं हुआ. फिर भी नहीं माने IAS ऑफिसर. अब क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का केस था, हाई कोर्ट ने ये कहा, stop the salary of 1.75 lakh rupees derived per month by this IAS officer because it is the lack of his managerial capacity, his management skills. That is why the corporation is running into the loss. If the corporation is running into the loss, it should be the management which should be equally responsible and not the poor widows. अब समझ में आया फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है. रिट पिटीशन तब इशू किया जाता है जब फंडामेंटल राइट्स का सवाल उठता है. समझ में आया? रिट के बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे. अभी के लिए ये समझो कि स्टेट कॉर्पोरेशन जब आप बना देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक कंपनीज एक्ट या कंपनी कोई बना दी या अपनी सरकारी कंपनी कोई बना दी तो आप फंडामेंटल राइट से
उस कॉरपोरेशन को बचा लोगे। फंडामेंटल राइट्स उस कॉरपोरेशन को भी ऑब्जर्व करने होंगे, क्योंकि इन विडोज ने ये कहा कि ये जो है पेंशन इनकी लग्जरी नहीं है, दे हैव टू बाय देयर ओल्ड एज केयर एसेंशियल्स, दे हैव टू बाय देयर मेडिसिन एंड ऑल। तो उस आईएएस ऑफिसर की सैलरी को रोक लिया गया। अब ये रिट पिटीशन में भी इसी एग्जाम्पल को यूज करेंगे, बट अभी के लिए अब कॉरपोरेशन क्या होता है इसको समझना। कैन आई इरेज दिस? काम का नहीं है, वैसे भी बुरी हैंड राइटिंग है, तो फटाफट से आगे चलते हैं। देखो, जब गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ कोई भी स्टेट कोई भी एंटिटी डिपार्टमेंट को चलाती है, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इसमें मिनिस्टर का इंटरफेरेंस रहता है, मिनिस्टर को चंदा देना पड़ता है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। इसलिए एक मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन ने एक और एंटिटी का इन्वेंशन किया जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट कॉरपोरेशन क्या होता है? एक कंपनी फॉर्म में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट चलाती है, जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके तहत गवर्नमेंट एक आर्म्स लेंथ पे इसको कंट्रोल करती है। यहां पे तो सीधे सीधे है कि पीडब्ल्यूडी को बोला कि आप ये काम करो, मिनिस्टर के घर इतने पैसे पहुंचा दो, सड़क बनाओ, अगले मॉनसून में वो बह जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप मिनिस्टर के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर हो। यहां पे क्या किया गया? एक कॉस्मेटोलॉजी लगाई गई, कॉस्मेटिक्स काइंड ऑफ काम किया गया कि गवर्नमेंट एक पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एक एक्ट पास करेगी, उस एक्ट में इस बॉडी के, इस कॉरपोरेशन, इसको बोला जाएगा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट। कॉरपोरेशन फॉर्म कैसे डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटिटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज से डिफरेंट है। अब इसकी सारी पावर्स इस एक्ट में दी जाएंगी और इसका कंट्रोल कुछ इस तरह से होगा कि पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट exercising the powers given to the government under the State Transport Corporation Act will appoint a board of directors, and these board of directors, and government will also appoint a managing director. These board of directors will form the policy and managing director will implement that policy. ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पे ये दिखाया जा रहा है कि ये आर्म का लेंथ है ना, ये 2 आर्म्स हो गया। मतलब समझ में आया कि गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही, पार्लियामेंट ने पावर्स दी हैं, उस पावर के तहत गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है और मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर को एक पॉलिसी के तहत काम करना है जो पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाई है। ले देखे ये है तो वही गवर्नमेंट के ही लोग हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट कर रही है और गवर्नमेंट ही इनको रेगुलेट कर रही है। आज भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर ही आते हैं। कॉरपोरेशन को आप एक जरिया बना के फंडामेंटल राइट्स को कुचलने का काम नहीं कर सकते। दे विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट ओनली। क्लियर है सबको? एवरीबडी शुड से यस, पी और वाई और पी और एन। राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन फॉर विडोज और फॉर एनीबडी कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स ओनली। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर नोट करना है तो कर लेना, मैं इसको नीट एंड क्लीन वे में ड्रॉ कर देता हूं। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक एक्ट पास करेगी, उस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को पावर्स होंगी, गवर्नमेंट टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन मैनेजिंग डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल फॉर्म द पॉलिसी। देयर इज इन नटशेल the control is at arm's length। आर्म्स एक फासले से कंट्रोल हो रहा है। डिपार्टमेंटल फॉर्म में क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल है, इसीलिए
इन्फ्लुएंसिंग एंड आर्म ट्विस्टिंग रहती है। पैसा दो, PWD के चेयरपर्सन को बोला जाएगा पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हें जो है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में लगा दूंगा। यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है, बट फॉर नेम सेक जो ब्रिटेन में अच्छे से किया गया था वो यहाँ पे बुरे से किया जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर का जो टेन्योर है, जब तक वो डोनेशन देते रहता है, करप्शन करते रहता है, तब तक टेन्योर सिक्योर है, नहीं तो टेन्योर कमजोर है। देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, दिस इज हाउ द कॉर्पोरेशन फॉर्म इज मैनेज्ड। प्राइवेट कॉर्पोरेशन में भी ऐसे ही होता है। कॉर्पोरेशन के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है, और उस कंपनीज एक्ट के तहत वो कंपनीज को काम करना होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को रिपोर्टिंग देनी होती है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड, अब यहां पे देखो, वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस विच इज द स्टेट कॉन्फर्ड। अब अगर स्टेट ने किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को भी अगर मोनोपोली या ओलिगोपोली स्टेटस दिया है, तो भी वो कंपनी प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद भी स्टेट की डेफिनेशन का पार्ट मानी जाएगी, और उसको फंडामेंटल राइट्स ऑब्जर्व करने होंगे। फर्म, FIRM, अच्छा कंपनी फॉर्म बोल रहे हो, वो फॉर्म है, ठीक है। अब समझ में आया ये स्टेट की डेफिनेशन का जो पार्ट है। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, सिंपल लुकिंग थिंग्स, इन ऑर्डर टू नॉट कमिट सिली मिस्टेक्स इन प्रीलिम्स। स्टेट कॉन्फर्ड, अगर अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, जो हमने शीला की जवानी वाला एग्जाम्पल लिया था, वो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे रेलेवेंट है, ठीक है। गॉट इट? आर यू गेटिंग दिस? यानी कि अगर स्टेट ने, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी भी ऑर्गन ऑफ स्टेट ने प्राइवेट कंपनी को हायर किया फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, दो ही कंपनीज को हायर किया गया है, एक वजह से मोनोपोली हो गई, तो क्या इस इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कंपनी जो है रिलायंस या टाटा, क्या ये स्टेट के दायरे में आएगी या नहीं? दिस इज़ अ वेरी बिग, वेरी मूट क्वेश्चन। अगर ये रिलायंस के जुरिस्डिक्शन, अगर ये स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आएगी तो इस पे RTI अप्लाई होगा, अगर ये नहीं आएगी तो RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, मेरा ये जानने का अधिकार कि रिलायंस किस बेसिस पे मेरी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से पैसे चार्ज कर रही है, मेरा ये अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन पड़ा है और अभी तक इसका फैसला ना आया है ना आएगा। आएगा कभी ना कभी तो आएगा, राइट। सुप्रीम कोर्ट के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन जब तक आएगा तब तक बिजली से पैसे खाते रहेंगे ये लोग, और अंधेरा, एक अलग तरह का अंधेरा करते रहेंगे, उजाले में भी अंधेरा। समझ में आया? सो एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल, अगर स्टेट का कंट्रोल इतना ज़्यादा डीप हो, जैसे कि आजकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ पे लाइसेंस राज, कितना बनाओगे, कब बनाओगे, किससे बनाओगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce, when to sell, then this is considered to be that company on which the state is exercising too much of control. If that company is violating the fundamental rights, then the government should be held responsible. Clear है? मोनोपोली और ओलिगोपोली है, प्राइवेट कंपनी विल कम अंडर डेफिनेशन। यस, स्टेट क्रिएटेड मोनोपोली है, स्टेट ने अगर लाइसेंस दिया, ध्यान दो इधर, स्टेट क्रिएटेड मोनोपोली, कॉर्पोरेशन एंजॉयज द मोनोपोली स्टेटस विच इज स्टेट कॉन्फर्ड। स्टेट ने जियो को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस क्यों दिया? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, दे आर वेरी, दिस इज अ वेरी कोवेटेड टैग, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों दिया? क्योंकि वो जियो है, रिलायंस की है, बाकी सब मरो है। समझ में आया? तो अगर ऐसी कोई मोनोपोली या कोवेटेड स्टेटस स्टेट के द्वारा कॉन्फर किया जाता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी और, मान लो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को डिक्लेयर नहीं किया,
जिस इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर किया जाएगा उसको स्टेट से 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज क्या जियो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है? यस। समझ में आया क्यों? मेरे को क्यों नहीं दिया? दिस इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। अब स्टेट की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई पिटीशन फाइल करना है तो आपको पहले ये देखना होगा कि वो बॉडी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती है कि नहीं। अगर आपको कोई ऑर्डिनरी केस फाइल करना है, टाटा को अगर जियो के खिलाफ कोई ऑर्डिनरी केस फाइल करना है तो स्टेट, ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी केस फाइल नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनरी केस कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम, बट इफ यू वांट टू फाइल अ case of violation of fundamental rights, then the matter has to be the underlying matter has to be the violation of fundamental rights. Clear? आगे चलते हैं। Sovereign functions. If the functions of the corporation are of public importance and closely related to the governmental functions. देखो अब इसमें क्या है, अगर कोई फंक्शन सॉवरेन है, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, ये सब सप्लाई करने के फंक्शंस हैं, ऐसे केस में स्टेट को अगर किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो भी उसे डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर माना जाएगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी सॉवरेन फंक्शन कर रही है, सरकार के बिहाफ पे वो बुनियादी सेवाएं प्रोवाइड कर रही है। मान लो कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स किसी एरिया में हायर करे और बोला कि अब ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ही यहाँ का टेक केयर करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे अगर चोरी हो गई या कुछ ऐसा हो गया, रेप हो गया या कुछ, तो स्टेट को जिस गवर्नमेंट एंटिटी ने उसे हायर किया था, जिस स्टेट की अथॉरिटी ने उस सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया था, चाहे वो ऑफिस ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, एसपी के ऑफिस ने उसे हायर किया था कि प्राइवेट पुलिसिंग के लिए, ठीक है, प्राइवेट पुलिस एजेंसी के लिए, तो उस ऑफिस के खिलाफ केस जाएगा, प्राइवेट एजेंसी के खिलाफ नहीं। तो मैं अपने फंडामेंटल राइट का हवाला देते हुए, साइटिंग माय फंडामेंटल राइट्स, आई कैन फाइल द केस अगेंस्ट द ऑफिस ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट which must have given the license to this private company. Clear? बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं कि प्राइवेट कंपनी ने जो है किसी को लाइसेंस दे दिया गन का, प्राइवेट कंपनी ने किसी को हथियार बेच दिया। अब ऐसे केस में अगर वो पर्सन जिसको हथियार बेचे गए हैं, वेपन्स बेचे गए हैं, या मान लो कि बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट वेपनाइज्ड हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनी उसको लाइसेंस बेच रही है, जबकि लाइसेंस एसपी के ऑफिस की परमिशन के बिना नहीं दिया जा सकता, वेपन नहीं दिया जा सकते बिना एसपी के ऑफिस की परमिशन के। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी लाइसेंस देती चली जा रही है तो क्या एसपी के ऑफिस के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एसपी का ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इज मेयरली रेगुलेटिंग दिस प्राइवेट वेपन्स सेलिंग एजेंसी। अब समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जहां रेगुलेशन है, जहां पे एजेंसी रिलेशनशिप है, एजेंसी रिलेशनशिप है। अगर किसी को स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हायर किया गया, मैं अलग अलग केसेस बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर किसी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को स्किल इंडिया मिशन के तहत हायर किया गया और उस स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ने किसी की स्किन जला दी, ठीक है, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देते टाइम किसी की स्किन बर्न हो गई या कुछ ऐसा, तो केस किसके खिलाफ होगा? स्टेट स्किल्स कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, सरकारी स्किल्स कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, क्योंकि वो पर्सन वहां पे अपनी स्किन को किल करवाने नहीं जाता अगर उसे सरकार के ऑथराइज्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर पे भरोसा नहीं होता। क्लियर? प्राइवेट एयरलाइंस कम अंडर, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। प्राइवेट एयरलाइंस इफ अंडर उड़ान स्कीम, यस, ठीक है। अगर जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट पे कार को पार्क करने के 1400 रुपीज चार्ज कर रहा है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ केस आप फाइल कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी केयरलेस नहीं होगी। देयर इज अ राइट टू रिकोर्स। राइट टू रिकोर्स ये होता है कि आप
गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनी से मुआवजा बाद में वसूल कर सकती है प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करके। क्लियर? एजेंसी रिलेशनशिप होता है कि अगर देखो, एजेंसी रिलेशन की सिंपल डेफिनेशन मैं ये बता रहा हूं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेडी आईएएस ऑफिसर को एक प्राइवेट इनोवा कैब मुहैया करवाई, ठीक है, अवेल करवाई, दिस इज प्राइवेट इनोवा कैब, ठीक है। अब उस लेडी ऑफिसर के साथ में भले ही वो आईएएस हों, लेकिन अगर उनके साथ में कुछ मॉलेस्टेशन या कुछ रेप जैसा होता है, तो क्या वो लेडी आईएएस ऑफिसर प्राइवेट इनोवा कैब एजेंसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी कर सकती हैं फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी? गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने तो उस गाड़ी में, वो तो उस गाड़ी में बैठी, she took a ride in that vehicle which was hired by government for her. She relied on the government's security checks. समझ में आया? एजेंसी होना एक अलग बात है। अब समझ में आ जाना चाहिए। अब नो मोर एग्जाम्पल्स, आगे चलते हैं, ठीक है। इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ कॉर्पोरेशन, मैंने ये समझा दिया डिपार्टमेंट कैसे कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, गवर्नमेंट may not have any statutory control over the NGOs as such. Still, it can be established that a particular NGO has been substantially financed directly or indirectly by the government, directly or indirectly by the funds provided by appropriate government. In such an event, that government will fall within the scope of, the organization will fall within the scope of section 2H. Section 2H of RTI defines as to what comprises of public authority. सुप्रीम कोर्ट की 2013 की जजमेंट है कि अगर गवर्नमेंट सब्सटैंशियली फाइनेंस कर रही है, फिर ये पूछा कि सब्सटैंशियल फाइनेंस का मतलब क्या है? 2 रुपए, 2 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। ये बोला गया जब उस एनजीओ का 90% ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सरकार के दिए गए पैसे से चल रहा हो, यानी कि वो एनजीओ सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, यानी कि वो एनजीओ स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती है, यानी कि वो स्टेट की सिर्फ एक एजेंसी है। स्टेट अगर वो एनजीओ कोई गलती करती है तो उसे स्टेट की गलती माना जाएगा। डन? Consequently, even the private organizations which are though not owned or controlled but substantially financed by the appropriate government will also fall within the definition of public authority. Clear? Should there be reservation in PPP projects insofar, इसको बाद में देखेंगे, 16(4) के टाइम पे देखेंगे, right? Now, Article 13. We've already seen this. There are two parts of Article 13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Yes, you can ask your doubts now. किसी को एक बार हाजिरी लगाओ, फटाफट हाजिरी लगाओ, सारे बीच में सो जाते हो, फटाफट लगाओ। ठीक है, रहने दो, ये हीट हो रहा है इसलिए। ऑल राइट, जिन्होंने नहीं लगाई, जो साइड में मूवी देख रहे हो, वो भी थोड़ा लगाओ हाजिरी। निकलो रजाई से बाहर फटाफट। तुम लोग मल्टीटास्कर हो गजब के, है ना? साइड में कुछ और काम चल रहा होगा, किचन में कुछ कर रहे होगे, साइड में लेक्चर ढूंढते रहते हो ना, देखते रहते हो। एवरीवन मीन्स एवरीवन। All right, now the time for the doubts. ये जो लास्ट में, सेकंड लास्ट में, थर्ड लास्ट में प्रियांशी और ये सब तुम जो लास्ट में लगाते हो, ये क्या दादी अम्मा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, ये मतलब है क्या? क्या है ये?
माना कि इंडिया में लेट आने वाले की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होती। सो फटाफट बताओ, कोई डाउट है? नहीं है तो आगे चलते हैं फटाफट। आर्टिकल 13, इट इंक्रीजेज माई टेम्पो लेवल एज वेल, ठीक है, मेरे लिए भी मोटिवेशनल होता है ये। नाउ, laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights, all the laws in force in the territory of India, ये क्या है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए क्लॉज 1 है, इन force in territory of India immediately before, that means pre-constitutional laws, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be declared void. Clear? Now दूसरा पार्ट, यहाँ पे दूसरा पार्ट देख लेते हैं। स्टेट शैल नॉट मेक, ये क्या है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए। दिस इज फॉर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, दिस इज फॉर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। प्री मीन्स ऑल द लॉज इन द फोर्स in territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. Clear? So this is there. State shall not make any law which takes away. Why judiciary has not been included within Article 12? Strict sense of term में अगर हम देखें तो जुडिशरी इज अ मेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? जुडिशरी इज जस्ट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज जुडिशरी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ परफॉर्मिंग ऑर्गन। जुडिशरी को ये एनविसेज नहीं किया गया था कि जुडिशरी विल बी एन एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन, दैट इट विल बी परफॉर्मिंग समथिंग। अमिता, वेरी नाइस, वेरी नाइस, 3 cheers for you. Now, कभी कभी इंटरनेट ग्लिच भी हो सकता है, आई अंडरस्टैंड। जुडिशरी when doing judicial action not under but when doing administrative work it acts as the state. See, this condition has not been envisaged in the constitution, right? अब जुडिशरी जब कभी एग्जीक्यूटिव काम करने आती है या कुछ गलत जजमेंट देती है तो वो अपनी जजमेंट्स का रिव्यू करती है, राइट? ऐसा नहीं है कि जुडिशरी इज नॉट एमेनेबल टू रिव्यू, बट येस, the present times, the controversies that we are seeing today in the form of sexual harassment case against none other than the Chief Justice of India, in the form of master of the roster issues against the Supreme Court of India, in the form of issues related to transfer of judges, when the administrative side of judiciary has been under a lot of public glare for wrong reasons, it seems that judiciary too should have been brought under definition of state. But just because judiciary is not, it was not considered to be a performing organ, ये सोचा नहीं गया था, it was not envisaged during the time of enactment of the constitution or writing of the constitution कि judiciary इतना ज़्यादा आगे आ जाएगी। Judiciary will be at the forefront of governance in the country. Judiciary was a judicial organization, इसीलिए उसको नहीं रखा गया। क्लियर? आज के टाइम्स को देखते हुए ये होना चाहिए था। Okay, but why would government not own but substantially fund a corporation? देखो, अब सारी चीजें आप खरीदते थोड़ी हो रुबीना, है ना? अब अगर कुछ काम है, गवर्नमेंट क्या है, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। एंटिटीज टुडे, इट इज द एरा ऑफ आउटसोर्स्ड गवर्नेंस। आउटसोर्स्ड गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट एक्टिविटी, गवर्नेंस एक्टिविटी इज बीइंग आउटसोर्स्ड। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा, देयर विल बी अ हैंडफुल ऑफ फंक्शनरीज। आज हम लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज देखते हैं, दैट पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड आर बीइंग हायर्ड इन द गवर्नमेंट, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में ये दिस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली it is just answered in this way कि गवर्नमेंट हर चीज़ को खरीदेगी नहीं। अब आप ये बोल रहे हो कि सब्सटेंशियली फिनेंस करेगी, इस प्रेमिसेस का, आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस प्रेमिसेस का रेंट मैं देता हूँ, क्यों ना मैं इसे खरीद लूँ, बट टेम्परेरी है, हो सकता है कि उसके बाद कुछ और मुझे करना पड़े, है ना? हो सकता है कि कहीं और ब्रांच खोलनी पड़े, हो सकता है नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए, देन वाई शुड आई बाय दी रोड रोलर्स, why should I set up my own public works department when
construction of roads is going to be a kind of once in an year kind of an activity. Why should I nurture these heavy equipment? हाँ, अभी बता रहा हूँ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई इट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द जॉब ऑफ द गार्जियन? Guardian nurtures you. He takes care, okay, that you are not going haywire. If you are not going amok whether you are going amok the rules, he will bring you back on the right track. यही करता है ना. तो जुडिशरी भी कुछ ऐसा ही करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को नर्चर करती है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन लेबल्ड एज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू अपडेशंस. इसीलिए जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर बच्चे को कोई मारता है तो गार्जियन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बाय अमेंडमेंट्स, so much so that parliament brings about a damage to the basic structure, then guardian के वे में judiciary interferes. डन. इसलिए प्राइवेट कंपनी को सेल कर रहे हैं हम लोग इन द नेम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. डन. आर वी डन विद द डाउट्स नाउ? तो आर्टिकल 13 को फटाफट वाइंड अप करते हैं. छोटा सा आर्टिकल है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ. अभी आपको लग रहा होगा कि हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे. गाइज, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आते हैं. थ्योरी में कोई ये नहीं पूछेगा इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है. यू कैन चेक दीज क्वेश्चंस. Don't buy any previous year question bank and all. Our own question bank it will be made live. It will be made available in a few days. And today we have shared the polity book as well. How many of you got that book on the Telegram channel? बताओ फटाफट. ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, और you'll be getting an email from the email ID materials for jvis@gmail.com. तो we are creating these small things ताकि सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं. even if you are not that active on Telegram because you are very studious, then also you'll be updated. Clear? Okay, you'll be getting it tomorrow, don't worry. The others, okay? So ये laws जो inconsistent हैं, state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention. अगर ये fundamental rights हैं और अगर ये लॉ है तो ये लॉ इस हद तक इस फंडामेंटल राइट को क्रिपल कर रहा है, ठीक है, क्लिप कर रहा है, तो ये वाला लॉ उस हद तक फंडामेंटल राइट्स के नीचे आ जाएगा. ठीक है, दोनों में, चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के बाद 1950 के बाद कोई लॉ आया हो, या ब्रिटिशर्स ने जो लॉज इंडिया ने जो लॉज ब्रिटिशर्स से कॉपी कर लिए थे, ब्रिटिश एरा से जो कॉपी कर लिए 1935 के कुछ प्रोविजंस, आईपीसी 1860. आईपीसी 1860 इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 1860 में आया था, लेकिन आज भी ये एप्लीकेबल है. बट इसके जो अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, दोज प्रोविजंस which come into clash with the constitutional fundamental rights, part 3, they are declared to be invalid. Sooner or later they are going to be declared invalid. ठीक है, जैसे section 377 the homosexuality, it was declared invalid because of this reason, right? Done. Post constitutional laws, to the extent that they compromise with the fundamental rights, they will be declared
इनवैलिड। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ईमेल आईडी से आ जाएगी और गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। If the judiciary finds that parliament is going to enact a law which is going to be ultra vires or against, ultra vires का मतलब है simple, against any of the constitutional provisions, judiciary can take suo motu cognizance of that law only after that law has been enacted, only after that law has finally passed। ठीक है, ये हमने सारा देख लिया था 13 clause 1, 13 clause 2। तो अभी के लिए यहीं पे युद्ध को विराम देंगे आज के लिए। तो ये सारी चीजें देखी थी, इसमें अभी कुछ और चीजें हैं जैसे कि रिलीजियस कस्टम्स एंड द लॉज, द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइक सबरीमला टेम्पल जजमेंट, राइट। इनवैलिड और वॉइड में डिफरेंस ये होता है दैट लॉ इज इनवैलिड एंड हेंस डिक्लेयर टू बी वॉइड। वॉइड मतलब खत्म, खारिज कर दिया। इनवैलिड पहले डिक्लेयर किया जाएगा और फिर देन इट विल बी डिक्लेयर टू बी वॉइड। वॉइड का मतलब यहां पे ये होता है दैट इन इट्स प्लेस समथिंग न्यू नीड्स टू बी एनेक्टेड, जुडिशरी इज नॉट फिलिंग द डिटेल्स। ठीक है, वॉइड का मतलब अब वहां पे एक खालीपन, एक खाली स्पेस क्रिएट हो गया। कभी कभी जुडिशरी एक लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करती है और खुद से क्लैरिफाई कर देती है कि यहां पे ये चीज ऐड करनी चाहिए, देन दैट लॉ इज नॉट डिक्लेयर टू बी void but it is declared to be only invalid or improper. Judiciary itself inserts some provisions. Am I right? Anybody any doubt in this? Okay, Pratik, क्या कहना चाह रहे हो? Yes, SC can take up a newspaper clipping also. You will be updated, okay, if we are allowed at ये क्लास शायद हो सकती है इवनिंग वाली क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो, इकोनॉमी क्लास में there could be some problem, this class will be allowed क्योंकि this building is on the main road, so on 15th of August some sevaks they visit these buildings, समझ रहे हो ना, and they do the rampage and all. Fine for everyone? Any other doubt guys? अभी इसमें हम कस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, सबरीमला टेम्पल जजमेंट और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को कवर करेंगे यहाँ पे। सो द वे वी हैव कवर्ड आर्टिकल 12, यू वुड हैव गॉट अ थरो आइडिया, अ फेयर आइडिया, अ डीप आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द स्टेट। You would not be stuck in any question which is framed around the applicability of the definition of the state. This is the advantage of giving these examples from different walks of life. All these examples are derived from the case law as it has evolved around Article 12 of the Constitution in various high courts and the Supreme Court of India. Yes, you will be provided the necessary PDF files and all, and keep a tab on your email boxes, and please take this gmail.com या कोई भी हमारी तरफ से ये मेल्स आती हैं उनको प्रमोशनल मैसेजेस से या अपडेट से निकाल के प्राइमरी में कैटेगराइज कर देना, राइट, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यू विल बी अपडेटेड अबाउट द ग्रुप, अबाउट द क्लास टुमारो ऑन दी via email, via WhatsApp and other means available. Clear? DNA होगा, yes, DNA घर से हो जाता है तो वो हो जाएगा। Book shared by you should be our one and sole reference. You can rely totally on the, देखो integrated का मतलब क्या होता है? Integrated का मतलब होता है one stop solution, right? He'll be providing everything. I had told you that this book will be provided to you on 25th of August, but we have delivered it a little earlier. Some more books are in the pipeline, so do not look here and there, right? Done? Thank you guys. Bye-bye. Good night.